Good evening. I'm your discussant today, Anuradha, and I have with me moderator Ekta Gupta and our speaker of the evening, Suraj Kabir Verma. So, Ekta is an entrepreneur, an educator, explorer, and a learner. Above all, I regard her as a beautiful, amazing person who believes in sustainable health. So Ekta was a housewife in 2016. She started her journey towards greener, happier tomorrow. And her mission is every corner needs a plant. She gave birth to Parijay Genus Private Limited in 2017, Mool Srishti Foundation in 2022, with her vision of promoting Go Green concept by connecting environment to employment. She is very much envisioning about women empowerment through employment. So she focuses on environment and women employment. Her goal is, all right, her goal is greener and of course, greener world, globally green and human working conditions too. The artists that will be seen very soon in our Navothan as well. Please move forward. So our instructions to everyone, please mute your microphones and Q&A can be taken on the chat box. Our moderator will read the questions. So please put your questions in the chat box. Thank you. So here about me a little bit, I'm CEO and founder of Be Better HR Solutions and also COO at Punjab Angels Network. My forte has been HR. I have 20 years of experience in HR. And in 2018, I thought, why not understand the major aspect of life, which is life itself. So I started my journey as a life coach, as a motivational speaker in 2018, and I'm globally on the panel of North Carolina UVision and Nigeria's, what do we call it, Heritage Global, and a few others with Government of India and private startups and of course, Wiki president. Thank you. Now here I would introduce my speaker for today, Mr. Suraj Kabir Verma. You won't find him that aged. I don't see he's 34 years by the looks of it. He is a martial arts expert. He has his outlets, what do we call them? Academies. Sorry? Academies. Academies, yeah, in Chandigarh, in Mohali, and he's a celebrity trainer, 22 rifle shooter. He's got 150 medals, and not to miss the MMA Academy black belt in Taekwondo, karate medalist. My God. Okay, he has trained Mahira Sharma, Hadi Sandhu, Sunanda Sharma, and many more. Bharat Navnirman Ratan Awardee in 2016, Best Educationist Awardee in 2017, Mahaguru Awardee in 2021, Pride of Asia Awardee 2018, Abdul Kalam Puruskar 2019, delivered self-defense workshops and lectures in mental health awareness. That's a common ground. I'll enjoy talking to you. So in all the major establishments, PGI, PEC, IIM Indore, CGC Landra, and many big corporates. So my friends, it's going to be a very interesting conversation with our speaker invited today, Mr. Kabir. Thank you so much. So once again, welcome Kabir, and please, if I've missed anything, you can. हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एंड राम राम सभी को। राम राम। मेरी तो शुरुआत यहीं से होती है, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, एंड आई गेस सबकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। राम का नाम ले लिया तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। सो थैंक यू, बहुत मतलब जितना भी बोला अच्छा है। एंड आई एम रियली, एकता मैम को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, आई गेस लाइक 2010 से, एंड उन्होंने मुझे ग्रो होते हुए देखा है, एंड मैंने उनका सारे फेजेस उनके देखे हैं, एंड आई हैव सीन हर ग्रोइंग, लाइक कैसे वो सोशल कॉजेस में इन्वॉल्वड है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हर दैट शी हैज कॉल्ड मी अप ओवर हियर, एंड लेट्स hope for the best webinar ever. Absolutely. All up to you.
Anuradha, are you there? नहीं मैम, अनुराधा मैम का आई गेस वो होल्ड हो गया है, स्टॉप हो गया वीडियो। Okay. So, I think to begin with, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि कैसे, क्योंकि मैंने भी, जैसे आपने बोला कि आप भी शुरू से हम जर्नी देख रहे हैं, सिमिलरली मैं भी आपकी जर्नी बहुत देर से देख रही हूँ। सो सबसे पहले आप कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी, दैट हाउ यू गेट मोटिवेटेड, कहाँ से आपने मार्शल आर्ट के लिए इंटरेस्ट आया एंड। मैम मैं 6 साल की एज से मार्शल आर्ट्स में हूँ। मैंने वाज इन स्कूल, तो हमारे तो मतलब घर में भी माहौल ऐसा रहा है कि सारे कुछ ना कोई गेम सब कोई खेलते रहे हैं। फादर साहब को रनिंग का शौक था, मम्मी अखाड़े में ट्रेनिंग करते रहे हैं, तो हमारे घर में वो माहौल था। प्लस 6 साल की एज में स्कूल में कराटे वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई थी, वहां से करते करते एक्चुअली मैंने 11 साल की एज में इसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया था, 11 या 12 साल की एज में। तो धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते गए। एंड हमारे घर में एक चीज थी कि कुछ भी करो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो। मैंने काफी सारी स्पोर्ट्स खेली है प्रोफेशनली, बट ये था कि मार्शल आर्ट तो कंपलसरी है, ये करना ही करना है, बाकी सब एडिशनल जो मर्जी करो, बट ये कंपलसरी है। देन स्टडीज का शौक था, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद ये था कि 2007 में आई गॉट ब्लैक बेल्ट, एंड 2010 में मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था। मेरा मेन रीजन एकेडमी शुरू करने का ये था क्योंकि चंडीगढ़ में कहीं भी आसपास कोई प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी। मतलब जब मैं करता रहा हूँ तो पार्क में ओपन ग्राउंड में ट्रेनिंग की थी, जहां मैंने यही रियलाइज किया था कि वहां पर मतलब कभी कोई बारिश हो जाए तो छुट्टी हो जाती थी, कभी ज्यादा गर्मी हो जाए तब छुट्टी हो जाती थी। तो ये सब चीजें रियलाइज की। एंड उसी टाइम माइंड में एक ड्रीम था कि यार एक अपनी एकेडमी होगी जहां मैं लोगों को ट्रेन करूंगा। एंड बाय गॉड ग्रेस आज हमारी एकेडमी है। ट्राई सीरीज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है हमारा, जहां से हम लोगों ने स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के, वर्ल्ड लेवल के फाइटर्स हमने प्रिपेयर किए हैं। So, सब आपके सामने ही है, आप तो गवा रहे हो हमारी तरक्कियों के। Beautiful, beautiful. So, Kabir, would you share your perspective कि कैसे हम बोलते हैं कि आप फिजिकल हेल्थ, आप मेंटल हेल्थ पे भी बात करते हो, तो आप कैसे समझते हो कि मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, या स्पिरिचुअल पे हम बाद में आएंगे? लेट्स अंडरस्टैंड द कोरिलेशन मेंटल और फिजिकल हेल्थ। देखिए मैम, सिंपल सा फंडा है, इफ अ पर्सन इज नॉट मेंटली फिट ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फिजिकली। अगर वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, वो फिजिकल फिटनेस की सोच भी नहीं पाएगा। एंड वाइसा वर्सा है। कई बार हमने देखा है कि रिसेंट 2-3 सालों में हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक 22 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसकी बिल्ड बहुत अच्छी है, अच्छा खासा कोई बॉडी बिल्डर है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ गेम कर रहा है, बट उन्होंने सुसाइड कर लिया। द रीजन इज के फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा जोर है। हर किसी को पता है कि फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख लेते हैं, डांस ज्वाइन कर लो, रनिंग कर लो, क्रिकेट खेल लो, है ना। बट मेंटल फिटनेस एक ऐसा फेज है जो अनटच है, बहुत कम इस पे बात होती है। जो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक फिजिकल हेल्थ वाला बंदा, मेंटल हेल्थ अगर उसकी ठीक नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो कौन सा मेडलिस्ट है, वो क्या उसने अचीव किया है लाइफ में, वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर वो मेंटली फिट नहीं है। और मेंटली अनफिट होने के सबसे बड़े रीजन ये है कि आजकल लोगों को स्ट्रेस हैंडलिंग ही नहीं आ रही, कोई सिखाई नहीं रहा इस बारे में। पुशअप करना तो देखा जाए तो 4-5 साल के बच्चे को आप फिजिकल फिटनेस सिखा सकते हो कि ऐसे पुशअप करते हैं, ऐसे स्क्वाट करते हैं, ऐसे बैट पकड़ते हैं, ऐसे डांस करते हैं। बट एक 4 साल के बच्चे को आप मेंटल फिटनेस नहीं सिखा सकते। तो देयर शुड बी समथिंग कि हम उनको कुछ ऐसे वेज हों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हों, या कुछ गेम्स के तरीके से हम उनको ये चीजें सिखा पाए कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ जरूरी है। अब जैसे मेरा सीजीसी में लेक्चर था, तो वहां मैंने ये रियलाइज किया कि 20-22 साल के बच्चे जो कॉलेज में हैं, मैंने वैसे ही उनको बोला था कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, और इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद मी, जस्ट डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मुझे उम्मीद थी कि 10-15 मैसेज आएंगे, बट लिटरली मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ था। आई गेस मोर देन 70-80 मैसेज रहे होंगे। वो मैंने आराम से टाइम लेके पढ़ा। उसमें कॉमन से क्वेश्चन थे कि सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं कैसे करूंगा। या जैसे कुछ एक मैरिड लड़कियां थी, उनका था कि सर हमारे घर में बड़ी प्रॉब्लम है, कैन आई शेयर विद यू। जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि यार मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन उसको इतना बड़ा बना लिया अपने माइंड में कि अब उनसे हैंडल ही नहीं हो रहा, इस चीज को हम हैंडल कैसे करें। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत जरूरी है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कि जितना जरूरी फिजिकल फिटनेस है उतना ही जरूरी मेंटल फिटनेस है।
एब्सोल्युटली कबीर, बहुत ही प्यारा बोला आपने। और बड़ा जरूरी है कि अर्ली एज में ही फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग की जाए, बच्चों जी, को कोप करना सिखाया जाए, बच्चों को एक फुलर पर्सनालिटी बनाया जाए, ना कि सिर्फ एग्जाम से उनका अस्तित्व एग्जैक्टली, गेज किया जाए। बताया जाए आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, आप काइंड रहेंगे, आप में सिविल वैल्यूज रहेंगी, तो यू आर एसिंग इट। तो मुझे लगता है डेफिनेटली, कहीं कि फ्रॉम द बिगिनिंग पेरेंट्स ही अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों की, और उन्हें समझाएंगे कि सिर्फ मार्क्स से आप हैप्पी इंसान नहीं बनते हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस, इंपॉर्टेंस टू योर रिलेशनशिप्स, योर सोशल स्टैंडिंग, आप लोगों से बात कितना करते हैं, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस, these all aspects actually make you a fuller person। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली, सही कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है, तभी आप फिजिकल हेल्थ की तरफ जाएंगे ना। डेफिनेटली, एक जी, एक और चीज बोलते हैं, मोशन चेंजेस इमोशन। तो अगर आप बहुत अपसेट भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो आपका इमोशन डेफिनेटली। चेंज हो जाएगा। तो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ मैम, जैसे कि आजकल दौड़ भाग वाली दुनिया में देखा जाए तो अगर मैं थोड़ा सा कुछ साल पीछे चला जाऊं तो हमें पेशेंस होता था। हम 5 मिनट की 10 मिनट की यूट्यूब वीडियोस देख लेते थे। बट आजकल करेक्ट। क्या हो गया कि हम 5 मिनट की वीडियो देखने में हमें ये होता है कि यार कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मसाला नहीं मिल रहा, हाँ क्योंकि बिल्कुल। रील का टाइम आ चुका है। हमें 30 सेकंड में हमारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। मैंने अभी एक रील देखी जिसमें कोई डांस कर रहा है, मैं हैप्पी हो गया। अगली मैंने रील देखी जिसमें कुछ सैड सा इमोशन सा आ गया और मैं एकदम से सैड फील कर रहा हूँ। तीसरी राइट। मैंने रील चेक की, उसमें कोई भगवान कृष्ण जी ऐसा कहते हैं, मेरे एकदम से इमोशंस चेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं वो क्विक हो गया है हमारे को। मेरा मानना ये है कि हमें यूथ क्या ऑलमोस्ट हर एज को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 50 साल का है उसको स्ट्रेस नहीं है या उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं है, हर किसी को है। आई हैव सीन, मेरी ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पर 4 साल का बच्चा भी मेरा एथलीट है, एंड मैक्सिमम 54 ईयर का इंसान भी मेरा एथलीट है। एंड आई ओके। डील विद पीपल। तो मैं यही देख रहा हूँ कि उनको ये चीजें सिखानी जरूरी है कि आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे करना है। हम गेम के थ्रू, अब जैसे कई बार फ्राइडे होता है तो फ्राइडे को बच्चों की गेम्स होती हैं। सो गेम्स वाले दिन पे हमें अगर पता है कि ये बच्चा कंटिन्यू जीत रहा है, उसको हम हारने वाले इमोशन जानबूझ के हराते हैं, सो दैट वो हार को भी हैंडल करना सीखे। कहीं ना कहीं वाह। मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स ये चीज हमें सिखाती है। अब मेरी एकेडमी में जो एंट्रेंस पे आप देखोगे तो वहाँ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लगे हुए हैं। तो एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था तो जो रिपोर्टर साहब थे उन्होंने बोला था कि सर ब्लैक वाले मेडल हटा दो, ग्रेस नहीं आ रहा। मेरा सिंपल से कहना, भाई ये एक एक मेडल की स्टोरी मुझसे पूछ ले, हर हर एक की स्टोरी है, तो मैं हटा ही नहीं हाँ। सकता। एंड बाद में उसी बंदे ने बोला कि मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आप बोलते क्या हो। मैं कहा मेरे लिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल कोई मैटर ही नहीं करता। एकता मैम। तो आज अनुराधा जी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, लग रहा है मुझे इशू आ रहा है। सो आई थिंक वी शुड बियर दिस इशू, क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो रही है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हम कितना भी ट्राई कर लें आ ही जाते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। यस। सो एज जैसे हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, एंड मैंने आपको हमेशा से देखा है कि किस तरह से आप बच्चों को रेडी करते हैं मेंटली बेसिकली, कि फर्स्ट ऑफ जी, ऑल उनको ये विलिंगनेस होनी चाहिए, है ना, फिटनेस के लिए, एंड प्लस हाउ इट इनकॉर्पोरेट्स इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे देखिए आपके मैम, पास हर सबसे एज पहली के चीज बच्चे पता क्या, आते हैं। सबसे पहली चीज है, ये सारी चीजें घर से शुरू हो जाती हैं। मैं इस बिल्कुल। चीज को कभी नहीं मानता कि बच्चा हमारा बाहर जाके बिगड़ गया या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चला गया, एबीसी वहां जाके गलत संगत में पड़ गया, वो नो डाउट वो सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। मैंने देखा है मेरे मम्मी पूजा पाठ करते हैं, उनको देख के मैंने पूजा पाठ सीखी है। ठीक है। छोटे होते अगर पेरेंट में कुछ इशू हो जाता था, मैंने वो भी देखा है। मेरा मानना ये है, मेरी हर पेरेंट को भी यही सजेशन होती है कि बच्चे देखो कच्चा घड़ा है वो, अगर वो जो देखेंगे वो उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। अगर वो देख रहे हैं कि हमारे घर में अच्छा सा माहौल हो रहा है, सारे पूजा पाठ कर, तो हम भी पूजा पाठ करते हैं। सेकेंडरी आ जाता है जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं कि हम किस तरह का इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं पर्सनली ये बिलीव नहीं करता कि आपने गूगल पे किसी के रिव्यूज देखे और आप चले जाओ। आपको भी पता है मैम कि हम लोग गूगल पे रिव्यूज बड़े आराम से खरीद सकते हैं, isn't it? एकता मैम, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। रिव्यूज भी है ना, खरीदे जाते हैं, लाइक्स भी खरीदे जा सकते हैं, सब कुछ सब कुछ फॉलोअर्स। मैम।
तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि बेटर है घर से निकलो, घर से निकलो। अगर मेरा फॉर एग्जांपल अगर मेरा भतीजा है और मैंने उसको कहीं ज्वाइन करवाना है तो मैं उसको पर्सनली लेकर जाऊंगा, मैं जो भी वहां पर कोच साहब है उनसे बात करूंगा, उनके रिव्यूज चेक करूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। और अगर वो अच्छे कोच साहब होंगे तो वो हर चीज का जवाब बड़े पेशेंस के साथ देंगे। और अगर राइट। उनको सिर्फ सेल को क्रैक करना है तो वो तो जो मैं बोलूंगा, बस सर मुझे तो 1 महीने में हाँ। मेडल चाहिए, तो वो बोलेंगे कोई नहीं सर दिला देंगे मेडल। आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ कोचेस कि 1 महीने में अरे सर बस हम तो इंटरनेशनल खिला देंगे। एंड ऐसे पेरेंट भी देखे हैं, दोज हु आर लाइक क्रेजी फॉर मेडल्स ओनली। उनको सिर्फ 1 साल में बच्चे को इंटरनेशनल मेडल आ गया, न्यूज़पेपर में फोटो आ गई, दैट्स इट। दैट इज नॉट स्पोर्ट्स। वो बच्चे को आप कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, छोटे बच्चों को आपने टॉफी दे दी, बट आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वापिस आएगा। एंड बच्चे ने 1 मिनट नहीं लगाना बोलने में कि मैं तो बच्चा था, आपको ध्यान रखना चाहिए था। फिर राइट। आप ब्रोकन फील करोगे कि ओ शिट ये क्या हुआ, मैंने तो तेरे लिए किया था। एंड उसने 1 मिनट नहीं लगाना बोलने में। कैरेक्टर डेवलप करना जरूरी है ना कि सिर्फ उनको विनिंग ट्रॉफी दिलवाना। ट्रॉफी मेडल सब सेकेंडरी है, मेरे पास बहुत पड़ी है, हाँ। 150 के आसपास होंगी, वो सब सेकेंडरी, कोई मायने नहीं रखता। अगर मेरा कैरेक्टर सही नहीं है, अगर मुझे इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, मैं आज राइट। जो मर्जी हूँ, मैं आज नीचे हमारे एक तो मैंने तो हमें देखा हुआ है, नीचे हमारे चाय वाला बैठता हूँ, वहां भी जाके मस्त बैठ के चाय वाय पीता हूँ, बातें करता हूँ। एंड मेरी आदत है, मैं कॉफी का बहुत शौकीन हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा फेवरेट प्लेस है CBTL, मैं वहां भी जाके बैठता हूँ। आई लुक आउट एट द पीपल के कैसे लोग हैं आसपास के माहौल में। अगर हमें बात करनी ही नहीं आ रही है अपने से छोटे से या अपने से बड़े से, उसका फायदा कोई नहीं जब तक मेरा कैरेक्टर इज एवरीथिंग। अगर मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ, और वो कहीं ना कहीं हमारे घर से शुरू होता है। कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि ठीक है यार, हमारे पेरेंट इंसान है, मैंने जैसे सुबह भी बात की थी कि इंसान है, गलतियां होती हैं, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन अगर मुझे समय रहते मैं सीख गया, सुधार गया, तो ही बेटर है। फिर मैं आगे कर्मा में बिलीव करता हूँ कि हाँ भाई जो मैंने पिछला किया वो तो भगवान देखेंगे, आगे मुझे ठीक करना है, उस पर काम करते हैं। एंड उसके लिए मुझे एक अच्छे ग्रुप की जरूरत होगी, अच्छे मेंटर्स की जरूरत होगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कबीर, आप किस किस मतलब कौन कौन सा स्पोर्ट्स करवाते हैं, और किस तरह की क्वालिटीज आप देखते हैं जब आप किसी को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं? मैम हमारी जो एकेडमी है इस प्रोफेशनल MMA एकेडमी, मिक्स मार्शल आर्ट्स। सो हमारे पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है वो है किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, मुay थाई एंड जिजित्सु की, ताइक्वांडो की, ये सारी चीजें करवाते हैं। और जब भी हमारे पास पहले दिन कोई एनरोलमेंट के लिए आता है, तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहले दिन मैं बहुत रॉ होता हूँ, मैं फेमस ही इसलिए कि यार ये तो बड़ा अक्कड़ कोच है, यू आर वेरी रूड। मैं कहता तो कोई बात नहीं जी, मैं रूड ही सही, लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा। आई एम नॉट द कोच कि आपको पहले दिन मीठी मीठी सी चीजें बता दी, ये राइट। ऐसे हो जाएगा, आप 3 दिन में ब्रूसली बन जाओगे, 4 दिन में है ना गामा लोग पहलवान बन, दैट इज एक्सपेक्ट नॉट करते हैं पॉसिबल। ये? हाँ अरे मैम बहुत हर तरह के लोग आते हैं मेरे पास। एक दिन मुझे कॉल आया कि सर मैंने मार्शल आर्ट सीखनी है, सारा कुछ उसको डिटेल बताई। देन इन द एंड ही इज आस्किंग कि सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा पैसे मिलेंगे, पैसे आप दोगे मुझे? कहता नहीं नहीं, मैं तो जब जीत जाऊंगा तब दूंगा ना, तो आप मुझे कितने दोगे? ओह फिर गॉड। तो वही पे दूसरा तरीका होता है पंजाबी वाला स्टाइल के भी, उनको कैसे हैंडल करना, उनको क्या समझाना कि भाई तू रहने दे। मतलब बहुत सारे हर तरह, क्योंकि देखो मैम हर तरह के लोग हैं, हमें एंटरटेन करना पड़ता है, बिकॉज वी आर कोचेस एंड ऑब्वियसली वी आर इनटू द बिजनेस एज वेल। तो हमें तो उनको उनको सिखाना है कि बेटा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, इट विल टेक टाइम, है ना। राइट। किसी को 3 महीने लगते हैं सीखने में, किसी को 3 साल लग जाते हैं, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। और हम लोग बिल्कुल। हमेशा ये देखते हैं कि सामने वाले का मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है। फिजिकल स्टेबिलिटी अगर होती तो वो तो डेफिनेटली कहीं भी कर सकता था, वो मेरे पास आया ही इसीलिए कि बनाने के लिए। अब हम लोग ट्रायल रखते हैं, पहले दिन ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद एडमिशन होगी, तो ट्रायल में हम अच्छा खासा रगड़ा लगाए थे। उसको हर तरह का वर्कआउट कराएंगे, मोबिलिटी ट्रेनिंग कराएंगे टू चेक आउट हिज मेंटल स्टेबिलिटी, कि वो मेंटली कितना स्टेबल है, कमांड्स पे कितना कंट्रोल है। उसके बाद थर्ड पैटर्न आ जाता है कि स्टेमिना कितना है, वो सब बात की बात है। अगर मुझे लग रहा है, मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो काउंसलिंग टाइम में जिन्होंने बोला कि सर मैंने बड़ी गेम खेली है, क्रिकेट खेला है, ये वो, और 20-25 मिनट के बाद उल्टियां मार रहे हैं, तो उनको हम गाइड करते हैं कि पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, रनिंग करो, 1 हफ्ते बाद दोबारा ट्रायल दो। उसका मजा अलग है, सो दैट बच्चा खुश होकर पैसे देगा कि सर ये रही मेरी फीस, अब मैंने करना है। और मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि यस नाउ आई डिजर्व दिस फीस, उसका मजा अलग है। Good, good. So, now very interesting. I remember speaking to you when you suggested that you are also a trekker. So, मैं बहुत मतलब ट्रैकिंग को मैं बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर समझती हूँ, क्योंकि वो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड करने में, आपको नेचर से कनेक्ट करने में, आपका डेफिनेटली। एंड्योरेंस लेवल बढ़ाने में
सांस का रिदम मेंटेन करने में, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज बहुत सिखाता है ट्रेकिंग आपको। तो जी मैंने कुछ ट्रैक्स यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, हमारा तो हिंदुस्तान भरा हुआ है सुंदर सुंदर जी जी ट्रैक्स जी। से। तो आपको क्या लगता है, किस तरह से आपने कभी ट्रेकिंग एक्सप्लोर की, और कहीं आप लेकर गए या आप जाते हैं, क्या आपका मैम एक्सपीरियंस? ये जो क्वालिटी मेरे अंदर आई थी ना, आई वॉज इन एनसीसी, और स्कूल में +1 में हमें केरला में ट्रैक करवाया था। आई गेस वो 16 किलोमीटर का ट्रैक था, पनबुड़ी करके जगह थी वहां पर। एंड वहां पर रूल होता था कि 1 घंटा कंटिन्यू चलना है, एंड में 5 मिनट की ब्रेक मिलेगी। उस 5 मिनट में आपने सिर्फ 2 बिस्किट खाने हैं, थोड़ा सा पानी पीना है, एंड वो एक बिस्किट के पैकेट में आपने 16 किलोमीटर कवर करने हैं। ये मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि अगर आप में लाइफ में मौका मिले ना एनसीसी ज्वाइन करने का, स्पेशली बच्चों को जरूर राइट। ज्वाइन करना। वो आपको जीने का तरीका सिखा देता है। अगेन लीडरशिप क्वालिटी, अगर हम लोग 30 लोग जा रहे हैं तो हमें एक फाइल मेंटेन करनी है, एक साथ चलना है, हमारा कोई साथी पीछे ना रह जाए, कदमों पे कैसे कंट्रोल रखना है, हर कदम के साथ ब्रीदिंग पे कैसे कंट्रोल रखना है। मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें हमें लग रहा है कि हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इन लाइफ वो कितनी चीजें हमें सिखाया जाता है। ऐसी सिचुएशन आ गई जहां हमारे पे मेंटल कंट्रोल नहीं है, हमें ब्रीद इन करना है, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कोई कितना भी गुस्से में आप हल्की सी स्माइल कर, तो बंदा वैसे ही ठंडा हो जाता है। और नहीं हो पा रहा तो इट मींस दैट इज हिज फॉल्ट, उसको जरूरत है इलाज की, मैं तो बिल्कुल ठीक मैं हूं। एंड आपको एक हमारा वही। छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। कभी मेरी जो बड़ी जी सिस्टर है, वो कभी ट्रेकिंग नहीं की उन्होंने। सो जी वो लोग सब मुझे बोलते हैं कि तुम क्यों मरने चले जाती हो, कभी कहीं कभी कहीं। फिर आती हूँ तो कभी बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, कभी पाँव में वो ना जी सोर हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वो कहते हैं तुम क्यों मरने के लिए स्पेशली इतनी दूर दूर जाती हो। तो एक बार मेरी बड़ी सिस्टर कहती कि ये कसौली के पास में एक छोटा सा ना वो सेवॉय ग्रीन के ऊपर एक ट्रैक जाता है। तो हाँ कहती जी हाँ जी हाँ चलो, जी। हाँ कहती मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं ले गई उन्हें। तो उन्होंने क्लाइम किया होगा, कुछ आधा घंटा भी नहीं हुआ। फर्स्ट फर्स्ट किलोमीटर थोड़ा मुश्किल होता है। तो जी जी जी। वो ऊपर जाकर सीधी लेट गई, और फेस पर हैंकी रख लिया कि तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जा सकती। तो मैं समझ गई कि या तो बीपी फ्लक्चुएट हुआ है, या हाई हो गया या लो हो गया है, लो हो गया। फिगर आउट नहीं कर सकते। जी जी तो मैंने कहा चलो पानी पिलाओ, कोई बात नहीं, हम सारे यहाँ बैठते हैं, आज यहीं पार्टी करेंगे। तो नहीं नहीं तुम जाओ, मैं नहीं आगे जाऊंगी। मैंने कहा हमने जाना ही नहीं किसी ने। पानी पिलाया, और विद इन 2-3 मिनट्स शी वॉज गुड। फिर हमने कहा अब आप लीड करो, हम पीछे रहेंगे। हम्म। बिलीव मी, हमें उन्हें रोकना पड़ा कि अब वापस चलो। वही लेके गई सबको, मेरे साथ मेरे कुछ एम्प्लॉयज थे, कुछ फ्रेंड्स थे, और वही सबको लेके गई हैं आगे। तो जी आई जी जी थिंक ये भी होता है कि ना, एक आपको अंदर से कि मैं लीडर हूँ, मुझे जी आगे जी जाना है। तो वो भी एक फैक्टर है। जी। बहुत कुछ सिखाता है मैम ट्रैकिंग पे। अब जैसे मेरी आजकल क्या मतलब, पिछले 2 साल से मेरी एक आदत बन गई कि मैं नाम जप करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, इफ आई एम टेकिंग एनी स्टेप, अभी मैं आपसे बात करूं, मेरे बैकग्राउंड में एक एक पर्टिकुलर नाम है, वो मेरा चलता रहता है, चलता रहता है। अब मैं जैसे कल भी मैंने बच्चों को लेक्चर दिया था पंचतत्व का, कि हमारी उंगलियों में ही वो पंचतत्व है, हर फिंगर एक साइन है, उसको कैसे हमने हैंडल करना है और कैसे कनेक्टेड फील करना है। एक बारी राइट। इंसान अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट फील करना शुरू कर देना, मिरेकल्स होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल मिरेकल्स। दिस आई हैव राइट। सीन पर्सनली। वाओ, सो यू ऑल्सो जी। वर्क ऑन 5 एलिमेंट्स, आप समझते हो। और आई बेसिकली मेरा रीजन, मेरा वो है ना कि मैं सुबह आज भी 3:30 से 4 के बीच उठता हूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। 3:30 से 4 के बीच उठना, नहाना धोना, उसके बाद पाठ करना, जाप करना, इन सब चीजों ने बहुत चेंज किया। मतलब मेरे को एग्रेशन इश्यूज थे जिसपे मैंने काम किया है। अगेन मैं हर बार यही बोलता हूँ कि वी आर ह्यूमंस, वी राइट। आर मेड टू बी मेक मिस्टेक, है ना। अगर हम ये सोच रहे कि नहीं जी ये इंसान तो गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर वो इंसान ही नहीं, तो देखता है, फिर उसकी पूजा करो। बट अच्छी चीज है कि अगर मेरी गलती पहले थी तो मुझे उसको रिपीट नहीं करना। नई गलती इज एक्सेप्टेबल, बट पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर पुरानी गलती रिपीट करो तो फिर मैं इंसान में डीड हो गया। राइट। राइट। जी। मतलब यू आर अ हाई परफॉर्मर, है ना, आप चैंटिंग भी कर रहे हो, आप सुबह जल्दी भी उठ रहे हो, ये तो मैम फिजिकल लाइफस्टाइल है ना, एक्सरसाइज भी। स्पोर्ट्समैन का लाइफस्टाइल है। अब जैसे मैं कॉर्पोरेट में जब मैं लेक्चर देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन है कि उगता सूरज कितने लोगों ने देखा है। एंड बिलीव मी, 80-90% लोगों ने नहीं देखा है। 80-90 इज अ बिग बिग नंबर, लेकिन उनको क्योंकि है ही नहीं, आदत ही नहीं है। किसी की शिफ्ट 4 बजे खत्म हो रही है, तो वो आते सार सबसे पहले मैगी वैगी खाएगा, कॉफी पिएगा, सो जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि 45 मिनट के बाद सूरज उगने वाला है, क्योंकि राइट। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वो कहीं ना कहीं उनके लिए हेक्टिक हो चुका है। बट मेरा मानना है कि जिस इंसान ने उगता सूरज देखना शुरू कर दिया,
जल देना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप जल दे रहे हो फिर तो सोचो आपने एक मिरेकल अचीव कर लिया। अगर आप जल दे रहे हो फिर तो नेक्स्ट लेवल चीज है। ये सब साइंस है। आई बिलीव इन हमारा जो सनातन, दैट इज अ प्योर साइंस। मैं भी ट्रू। बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बट वही चीज है कि डिपेंड करता है आपको मोटिवेट कौन कर रहा है। एक बॉस आपको कह रहा है फटाफट सो जा, सुबह आना है, काम करना है। और एक मोटिवेट कर रहा है सुबह तो 6 बजे उठता है ना, 5 मिनट पहले उठना शुरू कर दे बस। 6 की जगह 5:55 पे उठ। बेड अब जब मैं अपने बच्चों को यहाँ पर करवाता हूँ मेडिटेशन के लिए कि अगर 6 बजे उठते हो तो 5:55 या 5:50 पे उठो, बेड के साथ पीठ लगाओ और आंख बंद करके बैठ जाओ। कुछ जाप करने की जरूरत नहीं, बैठना शुरू कर दो बस। वो बैठने ने ही आपको धीरे 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 5:30 पे ले आएगा। बैठो। अब जैसे हमारी क्लास का एंड होता है तो हम हनुमान चालीसा सेंड करते हैं। तो मेरा राइट। मानना है कि हनुमान चालीसा पढ़ सुन भी रहे हो ना, वो तब भी तुम्हारा भला कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ये जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सबके जो मंत्रों की चैंटिंग है, इनको बोलना, इनको सुनना ही अपने आप में बहुत इफेक्ट करता है। और कभी भी आप नोट करना, अगर एक जगह हनुमान चालीसा चल रही है, 10 में से 2 लोग अपने आप बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, लिपसिंग स्टार्ट हो जाती है। वो पावर ही इतनी है उसकी। और वो करेक्ट। हम लोग, क्योंकि मेरे पास तो आते ही सारा यूथ है, तो मेरा तो होता है, मैं अगर जो नहीं भी सीखने वाला उसको भी सिखाऊंगा। वो गरारी अड़ जाती है ना स्पोर्ट्समैन की, करो करो, बहुत यू कैन अच्छा डू इट, कर यू रहे कैन हो, डू इट। बहुत ही और बढ़िया। अपने आप एक टाइम के बाद अपने आप करना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर तो आप माइंड बॉडी सोल तीनों का सिंक में कर रहे हो। देखो, जो जी आपने सुबह उठने वाली बात भी बोली है ना, हमारे मतलब हमें बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, कि हाँ सुबह जो जी, उठने का टाइम है। अच्छा, मोहम्मडन्स में भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि उस टाइम आपके जो एंजल्स हैं वो घूम रहे होते हैं आपकी दुआ घूम रहे होते हैं। आगे जाने के लिए, जी 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 है जी ना। जी। सरदार कहते हैं अमृत वेला। अमृत वेला। Every religion is teaching the same thing if we are ready to surrender, accept and follow it. जी तो जी जी जी। बहुत ही अच्छा लगा कबीर आपसे बात करके, इस बारे में समझकर, सुनकर। यू आर एन अमेजिंग पर्सनालिटी एंड रियली गॉड ब्लेस यू। आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं बच्चों की लाइफ्स में, कि मार्शल आर्ट्स और ये सब करके। तो मुझे अब थोड़ा सा क्रियोसिटी मार्शल आर्ट्स को लेकर है, क्योंकि हमने जो मूवीज में देखा है मार्शल आर्ट में ऐसे किया और ऐसे किया और विंड चल गई, है ना। तो वो सब क्या है, उस विंग के बारे में थोड़ा बता दो। देखिए मैम, रियल लाइफ और रियल लाइफ दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल हमारे सही। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने मूवियां देखी, रात को कोई मूवी देख ली, सुबह जोश चढ़ गया और आते सारी बस सर मैं कब फाइटर बनूंगा, कब क्या बनूंगा, 50 क्वेश्चन होते हैं। उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि जो भी हम ये वीडियोस में देख रहे हैं, मूवीज में देख रहे हैं, एटलीस्ट उसकी वजह से मैं आया तो सही एकेडमी। हाँ हाँ, बिल्कुल। एकेडमी पहुंच, किसी भी एकेडमी, नॉट ओनली माई एकेडमी, किसी भी एकेडमी, कल को जिम चला गया, वो बहुत बड़ी बात है। रात को मैंने सुल्तान मूवी देख ली, सुबह में जिम चला गया, कल से डोले बनाने शुरू करने हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वहां पर शुरू होता है कोचेस का काम, कि कोचेस आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। ऐसे भी कोचेस हैं जो आपको बस पहले दूसरे हफ्ते के बाद ही गाइड करेंगे कि सर ये फलाना प्रोटीन आया है, ये फलाना सप्लीमेंट आया है, ये ले लो। और ऐसे भी कोचेस हैं जो बोलेंगे 6 महीने तक हाथ नहीं लगाना है तो टांगे तोड़ दूंगा, है ना। हाँ। हर तरह की कोचेस हैं, हर चीज है, लेकिन उसके लिए कितना टाइम दिया वो मैटर करता है। आज की डेट में, मैं छोटे होते जब मैंने मार्शल आर्ट सीखनी शुरू की थी, हमें कभी नहीं था कि हम कभी लड़ाई करेंगे या कुछ करेंगे। बट ऐसी सिचुएशन आई है जहां अगर शायद मार्शल आर्ट नहीं आती तो मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग था। ओ माय आई गॉड। कुड हैव डाइड। बट अगेन वही चीज आती है कि मैंने प्रैक्टिस कितनी की है। मैं आज भी प्रैक्टिस में हूँ। मेरे पास जूनियर मेरे एथलीट्स हैं जो मुझसे भी बहुत अच्छा करने लगे हैं। मैं हमें, हाँ और वो देख के तो मतलब कहते हैं ना, एक ग्रेस अपने आप ही आता है कि ये मेरे बच्चे, प्राउड फील होता है। तो हम बिल्कुल। उनसे भी सीखते हैं। जिस दिन मैंने ये थॉट ला दी कि नहीं नहीं मैं कोच हूँ, मेरी एकेडमी, मेरा सब कुछ, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे कि कोई नहीं, एक दूसरे से करो। हम लोग जैसे कई बार रेसलिंग कर रहे हैं, कोई दांव लग गया, चोक लग गया, और अगर मैंने टैप नहीं किया, पता लगा मैं ही बेहोश हो गया, वो ज्यादा बेइज्जती है। रादर देन मैं टैप करके बोलूंगी यस नाउ यू हैव वन। उसका मजा अलग है, एक्सेप्टेंस। तो एक हर चीज है। स्टूडेंट को आई थिंक एक्सेल करते देखकर जो प्राउड फील होता है, वो वही है जैसा बच्चे को अपने पेरेंट एक्सेल को करते देख के, है ना। डेफिनेटली, मैं वही बात है ना, पेरेंट ने हमें हमारे भरोसे छोड़ा बच्चों को। तो हाँ अगर मैं उनको देख के खुश नहीं, वही बात है, हर कोई तो टांग खींच रहा है, कोई तो चाहिए जो हाथ पकड़ के खींचे ऊपर। हाँ। मेरा मानना ये है, टांग बढ़िया। खींचने वाले 10 लोग हैं तो 10 में से 7-8 तो टांग खींचने वाले हैं। 2 लोग होंगे जो ऊपर खड़े होंगे कि चल 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 आजा, दोनों तीनों चलते हैं, सारे चलते हैं। तो वो दो, करेक्ट। मुझे उन 2 की कैटेगरी में आना है बस। मेरा मानना है कि मुझे वो 2% में आना है। God bless you, Kabir. Very nice thinking, and I am really impressed by your thought process, your physical routines, the way you are exploring spirituality. I think we all need to take a page out of your life and get inspired. और जिस जोश से और जिस इनोसेंस से आप बोलते हो, पता चलता है कि you are walking the talk.
So hats off to you, and I would Thank you, really ma'am. love to meet you in person very soon. और अब मेंटल हेल्थ पर तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे आपका मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, तो मेरे को तो फटाफट आई एम गोइंग टू बी योर स्टूडेंट वेरी सून नाउ. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. आ जाओ. And I really tell all my friends here who have joined us through Facebook Live and any other channels that this is the place where we talk about holistic health. Holistic health मतलब आपका दिमाग, आप जो खा रहे हैं, आपकी बॉडी जिससे बन रही, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और आपके थॉट्स वो भी आपको फीड कर रहे हैं, है ना. सो प्लीज जी. आप उन सबको पॉजिटिविटी में अगर लेकर चलेंगे, काइंडनेस अपने अंदर इम्बाइब करेंगे, चाहे आप चैंटिंग करते हैं या भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी डिवोशन जरूर रखिए. And stay connected to our cause. We work on holistic health. We have heard Kabir, and Kabir has his academies in Sector 33 and Mohali. If you are keen to learn, join him. Please visit him, and you can contact us at Parijay. We will help you contact him. Otherwise, you can go on his Instagram ID as well. Search Kabir, right? Train with Kabir. Train with Kabir, and you can find him. If you are struggling with any self-doubt, you want confidence in life, if you want to be successful, if you are struggling with some mental health issue, I am there. I am a personal life coach and I work on mental health. So please feel free to contact me, and we can together, Kabir and me, we can together help you become the best version of yourself. Thank you so much, Ekta. The portfolio you have given, the platform you have brought is amazing. And we missed you, seeing you today, but you are a legend. आपने हम सबको लाया यहाँ पर. Thank you so much, Anuradha, and thank you, Surat sir. It's Thank you, really ma'am. hosting you on our session. I'm really very sorry. Today I have this problem of not able to switch on my video. लेकिन ये जो है ना, जैसे आज के सेशन का जो था कि फिटनेस टू स्पिरिचुअलिटी. सो फिटनेस, हम लोग होलिस्टिक हेल्थ में हमेशा हमेशा यही बात करते हैं कि सिर्फ फिजिकली फिट होना या मेंटली फिट होना ये पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग शुड बी इन द बैलेंस. सो यही चीजें जो हम लोग एवरी टाइम, हम लोग जो हमारे स्पीकर्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं. तो राइट नाउ सूरज है, जो सूरज को मैंने तब से ग्रो करते हुए देखा है व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एंड देन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई थिंक विद हांडा सर, राइट? Yeah, at and slowly he evolved, he developed himself and opening the academies, and now he is one of the top. And I'm blessed that my kids have the best coach. So my daughter is trained under him. She got the black belt at the age of 8, and I think she was the youngest at that time. शी वॉज द यंगेस्ट वन, है ना. तो सूरज जी की अकेडमी में वो सबसे छोटी बच्ची थी जिसने ब्लैक बेल्ट लिया था. तो इट्स एन अमेजिंग जर्नी. तो जैसे हम लोग देखते हैं मूवीज में द कराटे किड, आई रिमेम्बर द मूवी, द इट इज अ सीरीज एंड दैट सीरीज इंस्पायर्ड. एंड yes, the dedication that the girl should be self-sufficient. They should be able to protect themselves in any situation. So this was my motive, joining her this martial arts as well as the fitness. Fitness is the most important thing. So thank you, सूरज सर. मैं फिर से आपसे एक क्लोजिंग लाइंस, जो हमारा टॉपिक है फिटनेस टू स्पिरिचुअलिटी, दैट हाउ इन योर थॉट्स you have connected. I know we had a lot of conversation जो इस चीज को वो कर रही है, लेकिन एक लास्ट में जैसे समराइज करते हैं ना कि how fitness is connected to spirituality. सूरज आप म्यूट पर हैं. You're muted. हाँ जी, मेरा मानना ये एक एज होती है. व्हेन आई वाज लाइक, आज से 5 साल पीछे चले जाए तो मुझे लगता था छोटे होते बहुत पूजा की है, स्कूल टाइम तक बहुत पूजा की है, पाठ करना, आरती उतारना, क्योंकि घर में माहौल था. फिर जैसे जैसे +2 हुई, कॉलेज टाइम में गए, पूजा कम होती गई, है ना. भगवान ने बड़ा कुछ दिया, इवन जितना मैं डिजर्व करता था शायद उससे भी हजारों गुना ज्यादा दिया.
फिर हम भगवान को भूलना शुरू कर देते हैं। मैंने भी भूलना शुरू कर दिया, काम काज में पड़ गया, मस्त एकदम अपनी बिजनेस लाइफ में आ गए, गाड़ी वाड़ी ले रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो करते गए, मैं और भूलता गया। फिर भगवान ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसी गेम घुमाते हैं कि बेटा तू मुझे कैसे भूल रहा है। फिर वो कुछ ऐसा पलटेंगे, ऐसी माया में फंसाएंगे कि वापिस जाओगे। और जब मैंने जाना शुरू किया तो फिर ये फील किया कि यार नहीं, इनको नहीं भूलना। स्पिरिचुअल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब हम फिटनेस से कोरिलेट करें ना, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हमारे हर भगवान के हाथ में वेपन है। भोले बाबा त्रिशूल लेते हैं, है ना। अपने विष्णु भगवान जी चक्र लेकर घूमते हैं, अपने बजरंगबली जी गदा लेके घूमते हैं। तो ऐसे तो है नहीं, वो अपने आप में शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं सिर्फ शास्त्र पढ़ूंगा या सिर्फ आरती करूंगा ना, उससे मेरा कुछ होना नहीं है। मैं मेंटली फिट रहूंगा, बट मुझे फिटनेस को भी लेके चलना है। अभी एकता मैम तो जानते हैं, मुझे काफी टाइम से मेरी बॉडी में बहुत सारे टैटू हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि मुझे एक और टैटू बनवाना है, जिसमें मैंने शास्त्र और शस्त्र इसका कुछ कंबाइन करके डिजाइन करूंगा। तो शास्त्र पढ़ना अपनी, अब जैसे मैंने गीता 2 बारी पढ़ी है। जितनी बारी पढ़ी है मेरे को, उतनी बारी मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ नया मिल रहा है। जब मैं फंसा हुआ फील कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो मुझे मुझे 100% रास्ता मिला है। देन रिसेंटली मैंने पढ़नी शुरू की रामायण। मेरे को उसमें बहुत सारी अमेजिंग चीजें मिली, ऐसी स्टोरीज मिल रही कि यार मतलब ये क्या चीजें हैं, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। मेरी यूट्यूब हिस्ट्री अभी आप खोल के देख लो, जब मर्जी मिलोगे आप यूट्यूब हिस्ट्री खोल के देख लो। उसमें प्रेमानंद बाबा हो गए, अनिरुद्धाचार्य बाबा हो गए, बागेश्वर धाम वाले बाबा हो गए, इन सब की कथाएं मिलती हैं सुनने को। हम जितना अपनी चीजों को सुनते हैं, उससे हमारा मेंटल, वो हमें मेंटली स्टेबल कर रहा है। और जितना हम वर्कआउट कर रहे हैं वो हमें फिजिकल स्टेबल कर रहा है। जैसा कि हमारा होलिस्टिक हेल्थ है ना, तो मेंटल और फिजिकल दोनों को पैरेलल लेकर चलना है। और मेरा मानना है कि फिजिकल तो मेरा सारा दिन वर्कआउट ही तो कर रहा हूँ मैं, बच्चों को करवा रहा हूँ तब भी मेरी एक्सरसाइज हो रही है, खुद के लिए 3 घंटे 2 घंटे निकालना वो भी एक्सरसाइज हो रही है। तो जब मैं मेंटली ड्रेन होता हूँ तो फिर मैं वापस पहुंच जाता हूँ। मेरे को मतलब मेरा कोई दिन नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर दिन मंदिर जाना है। जब मेरा कल की बात है, कल मैं आधा घंटा मेरे पास फ्री टाइम था, मैं भाग गया 34 वाले मंदिर में गया। मैं वेट कर रहा था, पहले सोचा कॉफी पीऊंगा, फिर मैं कहा छठ भरे। मंदिर में गया, मस्त जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम नाम का जाप किया, भोले बाबा को जल चढ़ाया, मस्त एकदम। मैं कहा बस आज का दिन मेरा हो गया मस्त। और पाठ डेली करना है। तो वो रूटीन सा बन गया। जब एक रूटीन बन जाता है फिर आपको अलग से टाइम नहीं निकालना। फिर भगवान आपको याद करते हैं, आप नहीं याद करते भगवान को, भगवान आपको याद करना शुरू करते हैं कि चल बेटा तेरा पाठ का टाइम होगा। मेरा मानना ये है कि चल बेटा और अपने आप टाइम निकालते हो। मेरे घर में लड्डू गोपाल है, उनका नाम है वासु। तो मैं मतलब वो खुद ही ऐसा कुछ करेंगे, कभी वो ऐसा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि मेरा मन कर रहा है भोले बाबा को जल चढ़ाने, कभी ऐसा इंटरेस्ट दिखा अब तू राम नाम का जाप कर। और जितना मैं कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने इसकी पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने राम राम किया, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उनका नाम लो, उनका एक बारी नाम लो, वो 100 कदम आगे बढ़ा देते हैं। ये मेरा मानना है, और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सारी चीजें। जी, थैंक यू। जैसे वो कहते हैं ना कि जो राम ने तो कुछ ही को तारा था, लेकिन राम नाम ने बहुत से बहुतों को तार अनगिनत, दिया। जैसे अनलिमिटेड है। सो जी ये है कि बेसिकली क्या रहता है कि अगर हम इसके साइंटिफिक रीजंस भी लें तो वो होता है हमारी कंसंट्रेशन एंड फोकस को इम्प्रूव करना। सो वो डेफिनेटली। बेसिकली जो एनर्जी का ऑरा लेता है, जैसे हम कहते हैं कि देयर इज सम एनर्जी, एक जी 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 सुप्रीम एनर्जी है। एंड एनर्जी, हम फिजिक्स, अगर हम क्वांटम फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं, सो देयर इज ए ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ, जी जी वी जी आर पार्ट ऑफ, जैसे विपस्सना में हमें समझाया जाता है कि हम लोग बहुत ही छोटे 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 एटम्स के साथ बने हुए हैं, और वो जी एटम्स मतलब बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो बहुत सारे बनते हैं और खत्म होते हैं। सो जी बेसिकली वी आर ऑल पार्ट ऑफ एनर्जी, एंड इफ वी आर एबल टू फोकस ऑन दैट एनर्जी, दैट इज द एक्चुअल बैलेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो जी 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 दैट्स द पावर ऑफ आर खुद को जानना। खुद को जानना, जैसे कहते हैं कि खुद को जानने में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। सो थैंक यू सो मच। ये बातें बहुत लंबी चलेंगी, है ना, तो नेवर एंडिंग थॉट्स है। थैंक यू जी सो much, Anuradha, for hosting, Pleasure. joining us as a discussant for these sessions. We are really sorry for some of the technical issues that we are facing every time, but definitely we are going to sort it out from the next sessions.